A very warm Thank welcome to all participants who are attending this session today. So Thank the you. spirit of the Skill Exchange program is to develop a community of lifelong learners who are committed to excellence and knowledge sharing. So we believe in that, and as part of our belief, we are running the session today from Tech Hive Private Limited. So I'll be speaking about how do we run meetings successfully. So here's the flow of today's talk. Fundamentally, I want to share the context first के meetings के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है and what are the problems with all the meetings that are going around and what can you do to solve some of those problems if not all. And of course, last but not least, why should you even care about this? So the context is that a lot of executives are spending 23 hours per week on average in meetings. That's a lot of time. 40 hours per week is your working time, और उसमें से more than half the time is being spent in meetings. और अगर आप इसके stats Google करेंगे, you will find a lot more stats. I've shared the source also. ये presentation भी आपके साथ share हो जाएगी. And so some of the other stats are related to the productivity of each meeting. 73 to 92% of the people are multitasking in meetings. कोई ईमेल के रिस्पॉन्स दे रहे होंगे, कोई अपने फ़ोन के ऊपर मैसेजेस के रिस्पॉन्स दे रहे होंगे. Somebody is attentive, somebody is not attentive, they're thinking about other things. So overall, unproductive meetings where they waste a lot of money every single year. And this is going up. And collectively, almost 15% of an organization's time is spent in meetings. I don't know where the audience is attending from today. So अगर आप लोग schools में हैं, hospitals में काम कर रहे हैं, banks के अंदर हैं, I'm sure in your own individual professional context, आप लोग meetings attend कर रहे होंगे और organize भी कर रहे होंगे. If that's the case, continue to type in your responses in the chat box. So a question is as participants or organizers, why should we not review this time? Because time is a limited resource. हमारे में से हर शख्स के पास वही 24 घंटे हैं. We have to do a lot of work in those 24 hours. So अगर हम optimize कर लें, अपना time अच्छे तरीके से spend कर लें, तो that will free up some time. And hopefully we should be able to use it for rest, for spending time with family, for doing stuff that we want to do. So what are the problems? First of all, during the meeting, we know that items that are not part of the agenda, वो items भी discussion के अंदर आ जाते हैं because somebody starts talking about them and then everybody kind of follows on. People don't show up on time. That's a very common problem, especially in our culture here. Not everyone participates. So yes, there are bodies sitting there who are not neither listening nor responding nor speaking up. So why invite them in the first place? A lot of times people are not taking notes, as in क्या discussion हुई थी और decision क्या हुआ था, opinion क्या था, pros and cons क्या discuss हुए, so on and so forth. So you can't remember everything that went on in a meeting. It's a very common problem के note taking नहीं होती. The decision making process is not clear, and that's a very I would say a very important issue that we should talk about. कि अगर एक मीटिंग का एक पर्पस है, गोल है, कुछ चीज़ डिसाइड होनी है, तो लोगों को क्लियर नहीं होता कि अच्छा ये डिसीजन जो है क्या ऑर्गेनाइजर ले रहे हैं या ऑर्गेनाइजर सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं एंड देन दे आर गोइंग टू आस्क समवन एल्स टू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन everyone's opinions in the meeting. And there are many other problems also. तो अगर हम जाएं तो इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्री मीटिंग स्टेज के ऊपर भी होती हैं. फॉर एग्जांपल, लोगों को इनवाइट आ जाती है एंड दे आर नॉट क्लियर कि व्हाट इज देयर रोल इन द मीटिंग, व्हाई एम आई इनवाइटेड, क्या इनपुट मेरे से एक्सपेक्टेड है, या मैंने डिसीजन लेना है और इसलिए मुझे इनवाइट आ रही है. देन अगर कोई इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू दैट मीटिंग तो वर्किंग पेपर कभी शेयर नहीं होता या एजेंडा क्लियर नहीं होता कि अच्छा लिखा होगा कि अच्छा मीटिंग टू डिस्कस दिस, तो अब डिस्कशन कैन बी एंडलेस. सो एक्चुअली अंडरलाइंग पर्पस क्या है, उसका वर्किंग पेपर क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, सो वो नहीं होता. एंड देन देर आर अदर माइनर इश्यूज के कभी वेन्यू नहीं लिखा हुआ, पीपल हैव टू कॉल टू फाइंड आउट और दे हैव टू ईमेल एंड सो ऑन. सो फ्रॉम एन एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव एक स्टेज होता है पोस्ट मीटिंग का भी कि व्हेन यू हैव रैप्ड अप स्टफ, तो
someone is supposed to take notes or minutes as needed, and then they should be shared with all the participants. Most of the time that's not being done. अगर किसी को मीटिंग के अंदर कोई काम असाइन हुआ था तो जनरली स्पीकिंग उसका फॉलो अप भी वीक होता है. पीपल आर नॉट क्लियर कि अच्छा ये किसकी को टास्क असाइन हुआ था तो उन्होंने किस डेट तक इस टास्क को करना था और एग्जैक्टली किसने करना था. 2 लोगों ने करना है, 1 ने करना है. सो दैट्स ऑल्सो unclear. So these are some of the problems, not all, that I have seen in the meetings that I have attended. Would anyone like to participate and share their experience? कुछ इसके अलावा लोगों ने problems witness की हो, कोई experience अपना share करना चाहे तो please go ahead. जी please go ahead, Dr. A. Dr. Arfa. Dr. Arfa. Doctor. So yes, I really want to endorse you that people are sometimes not interested and they don't even bother to hide it from everyone else in the meeting. They openly show their disinterest, and really some people are not taking notes. So these are really distractions for those who are there to attend the meeting seriously and to to contribute to the meeting. Right. Anyone else? कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपने फेस की हो, मैंने यहाँ लिस्ट ना की हो? आई एम श्योर देयर आर जिलियन इश्यूज. लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ मोटिवेशन, डॉक्टर आरफा ने अभी मेंशन किया. सो अगर हम आगे चलते हैं कि अच्छा व्हाट कैन वी डू एज पार्टिसिपेंट्स और एज ऑर्गेनाइजर्स, तो लेट्स मूव टू दैट. हाउ डू यू प्लान फॉर अ सक्सेसफुल मीटिंग? सो माई फर्स्ट रिक्वेस्ट इज कि अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप इन्वाइट दे रहे हैं, तो यू शुड थिंक ऑफ द एजेंडा वेरी क्लियरली. यानी to give you some examples, you can ask for a meeting to just invite ideas for a certain event. वो ideas ही आपने invite करने हैं, तो that's the purpose of the meeting. आपके पास एक healthy idea list बन गई है तो meeting successful हो गई, you've achieved your purpose. The second example is अगर आपने let's say कोई decision करना है तो उस डिसीजन के पैरामीटर्स क्या हैं, आप उनके बारे में सोचें कि अच्छा वी हैव टू डिसाइड कि आवर पॉलिसी फॉर लेट कमर्स क्या है फॉर एग्जांपल. तो उस केस के अंदर अगर कोई डेटा आपके पास है तो आप वो सोच सकते हैं कि अच्छा दैट्स रेलेवेंट डेटा, मुझे ये शेयर कर लेना चाहिए. बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या पॉलिसी होती है और इसका डिसीजन एम आई द ऑर्गेनाइजर गोइंग टू डिसाइड दिस और एम आई गोइंग टू generally collect people's opinion and then take it up to the CEO for approval. So you have to think of the agenda very clearly and you have to articulate it like that, write it clearly कि exactly आप क्या कर रहे हैं. Is it a decision? Is it a discussion? Are you inviting ideas? Are you taking a status update? Are you, whatever you are doing. Then you should give your meeting a meaningful name. Sometimes you get invites जिसके नाम को देख के समझ नहीं आ रही होती कि इसमें होगा क्या. तो if you give it a meaningful name, people can relate to it very easily. It doesn't take a lot of time. You should plan for a start and end time, both, and then decide the venue also. And think about it in the sense कि अगर आपको कोई PowerPoint उस मीटिंग में दिखानी है तो you should have your projector. अगर आपको वो आइडियाज इनवाइट करने हैं तो यू कैन प्रॉबली ऑप्ट फॉर अ प्लेस जहाँ पे वो रिसोर्सेज नहीं है, सीटिंग अप्रोप्रिएट है एंड सो ऑन. सो इट मेक सेंस टू थिंक अबाउट दैट ऑल्सो. यू शुड राइट क्लियरली. अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो यू शुड राइट हु द डिसीजन मेकर इज. लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आर लाइक कि अच्छा मैंने तो ये कहा है, मैंने ये कहा है. तो अगर डे 1 पे ऑर्गेनाइजर को भी क्लियर नहीं है कि डिसीजन फाइनली लेना किसने है, और decision making models जो हैं they are very different. You could have a model where you say कि जी अच्छा one person is going to take the decision. You could have a model where you say कि जी unanimous decision होना जरूरी है. So all the participants in the meeting, literally each and every single person must agree before we close this discussion. तो you have to decide कि decision making model आपका क्या है और decision लेना किसने है. Then Number 6, you should list down the participants and you should think about each person, कि आपको वो optionally meeting में चाहिए या mandatory है उनकी presence, और उनको आप responsibility क्या दे रहे हैं. If you expect every single person to share their opinion, you write it in the agenda, you write it as part of notes that I would expect your opinion. And then last but not least, you should prepare the material that can help the participants prepare for the meeting.
सो अगर कोई डेटा पॉइंट्स हैं, आप एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप कोई चेंज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप किसी इवेंट को प्लान करना चाह रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो यू शुड पुट इट डाउन इन बुलेट फॉर्म, इन डॉक्यूमेंट फॉर्म, स्लाइड्स, व्हाटएवर इज मेक्स मोर सेंस, आप उसको डॉक्यूमेंट करें. सो दिस इज योर प्लानिंग स्टेज इफ यू आर एन ऑर्गेनाइजर. और अगर आप ऑर्गेनाइजर नहीं हैं, आपने मीटिंग जो है वो सिर्फ अटेंड करनी है, तो यू कैन, आई जस्ट कवर दैट शॉर्टली. अबाउट मीटिंग इन्विटेशंस, अगर आप ईमेल भेज रहे हैं और पेपर इन्विटेशंस भेज रहे हैं, तो आप उसको स्पेस आउट करें, सेंड इट आउट वेल बिफोर टाइम एंड सेंड आउट ऑल्सो द इंफॉर्मेशन दैट यू वर्कड आउट. और अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो प्लीज रीड द मटीरियल दैट वॉज शेयर्ड विद यू. और अगर नहीं आया हुआ, यू कैन रिक्वेस्ट दैट मटीरियल. ठीक है ना, सो दैट यूर एक्टिव. आपकी होने या ना होने से कोई फर्क पड़ना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी लाइक एन ऑब्जेक्ट, you're like a clock on the wall. अच्छा, when you're running the meeting as an organizer, so you should start the meeting on time, and that's my personal recommendation. Because होता क्या है कि आप जहाँ कहीं भी काम कर रहे होते हैं, people understand who you are as a professional and they will treat you like that. तो अगर एज एन ऑर्गेनाइजर आपकी मीटिंग्स हमेशा टाइम पे स्टार्ट होती हैं, पीपल विल नो कि अच्छा इन्होंने जो टाइम दिया हुआ है उस पर दे विल स्टार्ट. पीपल विल मेक एन एफर्ट टू बी पंक्चुअल. हाउएवर इफ दे नो कि अच्छा नहीं, यू जनरली वेट टिल एवरीबडी कम्स इन, आधा घंटा लेट हो जाता है, 15 मिनट लेट हो जाता है, तो पीपल विल थिंक ओके, व्हाई शुड आई वेस्ट माई 10-15 मिनट्स, शी इज गोइंग टू वेट टिल एवरीबडी रीचेस. तो in reality you're actually punishing those who are coming on time because you make them wait. So you might want to consider कि आपकी अपनी personal profile क्या है and how do you want to be seen. Then you should walk through your agenda items. That's again a suggestion कि अगर आपके पास एक specific agenda है, try to focus on that agenda. और जितनी एनर्जी आपके अंदर होगी ड्यूरिंग द मीटिंग, उतनी ही एनर्जी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स के साथ, राइट? सो दैट ऑल्सो इज काइंड ऑफ कंटेजियस. योर ओन एनर्जी लेवल, योर ओन एंथुजियाज्म, द वे यू आर एंगेजिंग एवरीबडी, तो इट डज मेक अ डिफरेंस. अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ रहे हैं डिस्कशन के अंदर, तो यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ पार्किंग लॉट और अ साइड बिन. आप कहते हैं अच्छा ठीक है, ये मेरे एजेंडा में तो नहीं थी, बट आई अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट हियर, ताकि हम इसको बाद में सेपरेटली प्लान कर लें, इन एन अदर मीटिंग कर लेंगे, या ओवर ईमेल कर लेंगे, या आई डिस्कस इट विद पर्सन एक्स एंड देन आई विल गेट बैक टू यू. सो ये पार्किंग लॉट वाली चीज़ आप अगर अगेन if this is part of your typical style, people will know कि अच्छा ठीक है, extra items जो है वो यहाँ जाएंगे and they will get addressed later on. So that's an excellent way to manage the time of your meeting and the focus. Then number 4, you should take notes, and I do want to clarify here that meeting minutes हमेशा ज़रूरी नहीं होते, and they are both different things. Meeting minutes are not the same as meeting notes. तो अगर आपने कभी किसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, यू विल अंडरस्टैंड कि वहाँ पे मीटिंग नोट्स आर ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम अ लीगल स्टैंड पॉइंट ऑल्सो. सो यू हैव टू डॉक्यूमेंट स्टार्ट टाइम क्या था, एंड टाइम क्या था, सारी कार्रवाई आप डॉक्यूमेंट करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे पीपल हैव टू रिव्यू दोज एंड साइन ऑल्सो, राइट? सो देन इट बिकम्स लाइक अ लीगल थिंग कि अच्छा ये वाकई ये वाली चीज़ें डिस्कस हुई थी, एवरीबडी इज रेड थ्रू द मिनट्स एंड दे एग्री कि यही फैसले हुए थे. However, in other types of meetings जो कि ज़्यादा frequently होती हैं, work related होती हैं, you might not want this format of meeting minutes. तो जो भी आप ले रहे हैं, summary of action items and decisions and issues and concerns, you can call them meeting notes. So I hope this difference is clear to everyone. Lot of times लोग terms जो interchangeably use कर लेते हैं, तो it's good to be precise and correct. Then before you end the meeting, I would suggest कि आप recap करें, summarize कर दें कि अच्छा in today's meeting मैंने ये 1, 2, 3 opinions नोट किए हैं, इसके ये फ़ायदे नुकसान नोट किए हैं, या मेरे पास ये 10 आइडियाज़ आए हैं. तो उसका फ़ायदा ये होता है कि if there are additions, यानी कोई पॉइंट आप भूल गए लिखना, तो पार्टिसिपेंट्स जिसने भी वो पॉइंट रेज किया होगा, they can tell you कि अच्छा ये भी था, प्लीज़ ऐड दैट ऑल्सो. या अगर किसी की बात जो है वो ठीक से आपने नहीं लिखी है, कैप्चर नहीं की है, they can also say नहीं, this is not what I meant, आप इसको ऐसे लिखते हैं. तो that's a very nice way to again
show some respect to everybody's opinion. People who are attending, they feel heard. They think कि हाँ हमारी बात मैटर करती है, इन्होंने लिखा है, इन्होंने बताया है, and I'm part of the process. You see, you feel happy about this. So, and then of course you can end the meeting with thanks. Or if you're attending the meeting as a participant, normally क्या होता है, early stage of the career के अंदर we are participants, हम organize नहीं कर रहे होते. तो then first things first, you should be punctual. और make it a habit, because यही reputation आपकी और यही चीज़ें जो हैं कि आगे carry forward होती हैं in defining who you are. Be punctual, ask questions where they are relevant, and normally in asking questions, I ask people कि अच्छा आप इनको clarifying questions पहले पूछा करें which are easier to answer. यानी what पूछ लें, where पूछ लें, when पूछ लें, जो how और why है वो थोड़ा सा ज़्यादा deeper questions हैं, they require more analysis के वो answer हो. Then when you're asked for your opinion, तो yes, do share your honest professional opinion. और जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छा you don't have a lot of value to add, you can actually say that also कि अच्छा इस particular point के ऊपर मेरा कोई खास bias नहीं है कि अच्छा हम event को let's say लाहौर करें या कराची करें. अगर really आपकी कोई preference नहीं है, you can say कि जी मेरी preference नहीं है location के ऊपर. So it's not as if you have to cast your vote on each and every single item. तो जहाँ relevant है, जहाँ meaningful है, जहाँ पे आपको लगता है आप value add कर रहे हैं, आपकी बात से कोई फर्क पड़ेगा, तो वहाँ पे yes, you do participate. And don't think अच्छा मेरा कोई नाम call out करेगा तो I should speak up. That's a very typical pattern with people who are young participants, शुरू में कर रहे होते हैं, तो they are not sure if they should speak up or not. So please understand that if you're invited to a meeting, so you're invited to a meeting to participate, right? And fourth, do not multitask. आप दरमियान के अंदर जैसे ही जो है वो आप फ़ोन देखना शुरू करते हैं तो you will miss out hearing a few words, और हो सकता है वही key words हों. You will miss out observing other people, what they're doing, what they're saying. कोई बात किसी को अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है, तो please give it your 100% if you're part of a meeting, so that आपकी contribution जो है वो complete हो. आपकी presence या absence से फर्क पड़ता है. Coming to post-meeting tasks, if you're the organizer, yes, you should share the notes with everybody. And if there were any actions that were assigned to participants और आपने as an organizer उनको follow up करना है, तो आप अपने reminder लगा लें और dates के साथ, times के साथ, ताकि आपको बार बार you don't have to search for that email and the document जिसमें लिखा था who was supposed to do this, when were they supposed to do this. तो right in that context तो उस वक्त याद होता है फौरन. तो it just takes very little time अगर आप उसी वक्त reminders अपने लिए set कर लेते हैं कि अच्छा मैंने जो है वो किसी के साथ इसका follow up करना है. तो यहाँ तक before I move on, are there any comments or any other suggestions from folks? जी डॉक्टर आरफा. जी आयशा, मैं ये कहना चाह रही थी कि आपका नहीं ख्याल के ह्यूमन एरर को कम करने के लिए हम कम से कम पार्टिसिपेंट्स रखें और एक डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक बंदे के हाथ में हो, तो इस तरह की जो आ जाती हैं बीच में डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कम किया जा सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैंने किसी खास टाइप की मीटिंग के लिए ये सेशन नहीं ऑर्गेनाइज किया था, तो इसलिए इट्स डिफिकल्ट. और मीटिंग्स की नेचर जो है ना, देखें वो बहुत फ़र्क तरह की होती है. समटाइम्स व्हेन यू वांट टू जस्ट डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल, तो उस वक्त आपके पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा ही होंगे और मोस्ट लाइकली आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीका फॉलो कर रहे होंगे कि पीपल हु हैव क्वेश्चंस, या तो आपने लास्ट में Q&A स्लॉट रखा होगा या आपने कोई फैसिलिटेटर को रोल दिया हुआ होगा कि अच्छा प्लीज कंटिन्यू टू गैदर क्वेश्चंस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स और आप मुझे फीड करते जाएं, मैं बताते जाऊंगा या बताती जाऊंगी. तो इट डिपेंड्स कि आपकी मीटिंग का एग्जैक्टली पर्पस क्या है. तो जिस तरह कंपनीज के अंदर समटाइम्स दे हैव ऑल हैंड्स मीटिंग्स, वो लिटरली पूरी कंपनी के साथ होंगी. अगर वहाँ पे 60-70 लोग भी होंगे तो वो होंगी, बट दे आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन. आप कुछ बता रहे होते हैं. इसी तरह जो आपकी और तरह की मीटिंग्स होती हैं वो ज़्यादा
आई वुड से इंटरैक्टिव होती हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. टाउन हॉल्स लोग करते हैं ख़ास तौर पे छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ टू अगेन अंडरस्टैंड के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई स्पेशल इनिशिएटिव है. दे माइट ऑर्गेनाइज टाउन हॉल्स. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. जी जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका बहुत बहुत. और मेरा कहने का मकसद यही था, ज़ाहिर आप सही कह रही हैं, हर जगह पे आप पार्टिसिपेंट्स कम नहीं कर सकते हैं. जहाँ पे आप जस्ट फोकस्ड ऑडियंस अपनी बुला सकते हैं, मोस्ट रेलेवेंट लोग बुला सकते हैं, वहाँ पे आप ये कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आपको सबको बुलाना है, सबकी पार्टिसिपेशन जरूरी है, तो जाहिर है यू हैव टू गो फॉर दैट. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये वाला जो हमारा प्लानिंग फेज है ना, इसमें इसीलिए मैंने एक स्लाइड इसीलिए डाली थी कि ये आप ना पार्टिसिपेंट्स को, पीपल नीड टू थिंक, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कि मुझे कितने लोग चाहिए इस मीटिंग में, और अगर मेरा पर्पस और ये पार्टिसिपेंट्स, अच्छा मैं इसको क्यों बुला रहा हूँ, दिस इज स्पेसिफिकली टू गार्ड के एक्स्ट्रा लोग नहीं आए. जिसका वाकई कोई जिम्मेदारी है मीटिंग में, कोई रोल मुझे समझ आ रहा है, तो उसको आप बुलाएं. अदरवाइज डोंट इनवाइट पीपल हु आर नॉट रिलेटेड. एक और बात भी है जो मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ आयशा. जी जी श्योर. वो ये कि आप जो जिस पे मीटिंग करना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स जो आपके डिसीजंस हैं, जो या जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप उनको पहले लिख लें. यानी ऑर्गेनाइज करने वाले पार्ट पे आप उसको लिख लें, और वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि ये वाले पॉइंट्स जो हैं डिस्कस होने वाले हैं इन अ कम्युनिटी. जिससे ये होता है कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको ये पता होता है कि इसके ऊपर बात होने जा रही है, और शायद उनके पास पार्टिसिपेट करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट भी हो. जी जी बिल्कुल ऐसे ही है. तो आपका एजेंडा इज अ ब्रीफ सेट ऑफ बुलेट पॉइंट्स. ये जो एजेंडा जिसकी हम बात करें, इसमें आपके बुलेट पॉइंट्स आ सकते हैं 1 2 3 4. और ये जो आपका साथ में सपोर्टिंग मटेरियल है, जिसको आप वर्किंग पेपर कह सकते हैं, या जो भी मटेरियल होगा, वो आप साथ में अटैच करके भेजें. तो टुगेदर हो सकता है कहीं किसी मीटिंग के अंदर मटेरियल तो नहीं है, इट्स नॉट रेलेवेंट, लेकिन आपका एजेंडा जरूर हो सकता है कि जी हमने एग्जैक्टली मीटिंग के अंदर क्या करना है. तो एब्सोल्युटली. और एक और बात भी आपने यहाँ पे कही जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो ये थी कि नोट टेकिंग का एक जो हैबिट है वो होना चाहिए इन मीटिंग. और हमें बाकायदा जब हम स्कूल ज्वाइन किया या पढ़ाना, टीचिंग शुरू की, तो मुझे याद है कि इसके ऊपर हमें नोट टेकिंग, मीटिंग नोट टेकिंग के ऊपर हमें जो है ना वर्कशॉप करवाई गई थी. और हमें एक वे सिखाया गया था कॉर्नल नोट टेकिंग का, जो कि बड़ा एक इजी वे है इन अ मीटिंग कि हम उसको कैसे सारे पॉइंट्स को बहुत आराम से चॉक डाउन कर सकते हैं. राइट. इससे आपने लिखा इसमें कि ये बताया कि एक तो आप साथ रहते हैं, जो मीटिंग करने वाला है, आप आउट नहीं होते. जैसे कि मीटिंग में कोई लोग अपने मोबाइल फोन चलाना शुरू कर देते हैं, या आप उसमें से आउट हो जाते हैं कि क्या चल रहा है. जी जी जी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक्चुअली एक स्किल है कि आपने कॉन्वर्सेशन के अंदर से उसको समराइज करके लिटरली वो एक नोट या एक लाइन नोट करनी है कि अच्छा दिस इज अ समरी ऑफ व्हाट वाज डिस्कस्ड. तो ये बाकी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, और ये आई हैव सीन ओवर माय करियर कि लोगों को ये सिखानी पड़ती है नॉर्मली. अदरवाइज हमारे यहाँ कल्चर क्योंकि उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना प्रोफेशनल नहीं है, तो पीपल वॉक इनटू मीटिंग्स विदाउट एनीथिंग टू राइट ऑन. वो पेपर पेंसिल भी नहीं लेकर आते शुरू में, एंड देन ओवर टाइम दे अंडरस्टैंड कि अच्छा वी नीड टू हैव अ डायरी और समथिंग जिसके ऊपर हमने अपने साथ में नोट्स लेने हैं. एंड वी डू हैव अ कमेंट फ्रॉम मोहम्मद एम साहिब दैट participants of a meeting depends on type and scope and nature of business. Absolutely जी. Annual general meetings again, yes, AGMs हुए, this is a legal requirement. और जहाँ कहीं सिंगल मेंबर कंपनी होगी, वो 2 पार्टिसिपेंट्स के साथ भी कर रही होगी. तो जी that's exactly what we discussed कि depending on type of the meeting and the context, तो you can actually have hundreds of people present also. जी आयशा, मैं ये कह रही थी कि आप इन पर्सन मीटिंग्स की बात कर रही हैं ना, जो हम वर्चुअल मीटिंग्स जो होती हैं, इसके ऊपर वेबिनार्स होते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, उनकी भी थोड़े से आप एथिक्स डिफाइन कर दें काइंडली. जी ज़रूर. So I think generally speaking, तो most of what I said would also apply to an online meeting. और यहाँ पे वेबिनार थोड़ा सा फ़र्क है. फाजिल साहब, just give me one moment, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ.
सो यहाँ पे देखें जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है अगर वो ऑनलाइन है तो उसमें और भी ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है कि मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मेरे साथ रहें. So generally speaking, if I run online meetings with my team, I request them कि please अपना कैमरा आप ओपन कर लें because it's a lot more easier for me to see your expression while we are speaking and to engage with you. Otherwise blank screen पे देख के बात करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होता है because communication compromise हो जाती है. I am not able to observe their body language, expressions and their level of engagement. और कैमरा ऑन होता है तो psychologically also बंदा conscious होता है कि someone's looking at me. तो बाकी तो I think the rest of the things they would apply as it is because agenda उसका भी होगा, material भी होगा, start time, end time भी है, notes taking भी है और बाकी सारी practices तो वैसे ही apply करती हैं. Webinars I see differently because again अगर तो वो educational webinar है, कोई आपने panel discussion रखी हुई है, तो हर किसी का format फ़र्क होगा. So I want to restrict my discussion to meetings so meetings are targeted kind of interactions जिनका कोई objective होता है. जी फाजिल साहब आप unmute करके please go ahead. इसके जो स्लाइड्स होते हैं वो आप सेंड कर लेना ग्रुप में तो ये अच्छा रहेगा. जी बिल्कुल. So बिलाल I think the link is open, आप इसको WhatsApp के ग्रुप के अंदर बिल्कुल भेज दीजिए. It's absolutely open in the spirit of sharing with our community and that's what we want to encourage. Okay ma'am, will do. ये हाँ हमारा भी फायदा होगा. हम ये ले रहे हैं बाद में दोबारा इसको रिवीजन करना होता तो ये स्लाइड भी आप शेयर कर लेंगे तो अच्छा होगा. जी जरूर. अच्छा जी. So एक डॉक्टर आरफा कमेंट है कि people don't like to turn on video. I think with strangers that's very true. They might not like it. लेकिन जिन टीम्स के साथ आप क्लोजली काम कर रहे हैं आप उन्हें बेहतर ये है कि आप या तो एजेंडा में लिख दें, आप उन्हें बता दें आई वुड वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद यू एंड आई वुड एक्सपेक्ट के कैमरा ऑन करके हम बात कर सकेंगे. अगर अप फ्रंट आपने बताया हुआ ना तो देन पीपल आर माइंडफुल, वो ऑन कर लेते हैं. बट इफ समवन इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, उन्हें पहले से नहीं पता था तो फिर बाजुकात मुश्किल होती है बिकॉज यू आर नॉट फिजिकली इन अ प्लेस जहाँ पे आप कैमरा ऑन करना चाहें. So I think that professional appearance of a person matters to them and I think to everybody else also who is viewing कि वो ठीक होनी चाहिए. We have a question from Bisma. Is it must to keep video on during lessons? So Bisma, if your question is about tutoring lessons that are done on the platform, it is something that is to be decided between the tutor and the student. उसके ऊपर हमारी कोई hard पॉलिसी नहीं है कि आपने लाजमी ऑन करना है. However, we are aware of the fact कि sometimes it is easier to communicate if you have your camera switched on because the other party they can see your body language, they can see कि अच्छा expression क्या है. और अगर टीचर को बच्चे की भी बात समझ में आ रही है, for example, I've just turned on my camera for you. तो आप इमेजिन करें कि अगर आप में से किसी का कैमरा ऑन होगा एंड इफ आई कैन जस्ट ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज व्हाइल आई एम स्पीकिंग, इट मेक्स इट अ लॉट इजियर फॉर मी टू फॉलो के अच्छा ये बात समझ में आई है, इनको ये बात नहीं समझ में आई, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, राइट. सो दैट्स व्हाई वो आपकी अपनी चॉइस है. अच्छा जी. सो मूविंग ओवर टू द लास्ट पार्ट ऑफ माई डिस्कशन कि व्हाई शुड यू केयर अबाउट ऑल ऑफ व्हाट आई सेड. कि मीटिंग्स होती रहती हैं, पूरी दुनिया में हो रही हैं, अच्छा टाइम वेस्ट हो रहा है तो थोड़ा सा हो रहा है तो व्हाई शुड यू केयर. आई पर्सनली केयर अबाउट माई टाइम बिकॉज अगेन वी हैव फाइनाइट टाइम. दुनिया में आपको पैसे और मिल सकते हैं, आपको रिसोर्सेज और मिल जाएंगे, चीज़ें और मिल जाएंगी, राइट, मटीरियल और मिल जाएगा. बट इफ़ यू लूज टाइम वो दोबारा नहीं मिलता, राइट. टाइम दोबारा नहीं मिलता. और अगर आप किसी सीनियर पोजीशन के ऊपर हैं और आप इमेजिन करें कि आपके रोज़ एक भरा हुआ ग्लास होता है, उसमें से इतना सारा तो वैसे ही खाली हो जाता है, तो यू वुड वांट टू रियली अंडरस्टैंड कि भाई ये रोज़ खाली क्यों हो जाता है, मतलब मुझे पूरा चाहिए तो मुझे पूरा चाहिए. तो इफ़ यू आर माइंडफुल ऑफ योर ओन टाइम यू विल केयर ऑल्सो. और एज ए पार्टिसिपेंट ऑल्सो, यानी इमेजिन करें कि अगर एक काम आप करना चाह रहे हैं और वो मीटिंग्स प्रोडक्टिव ही नहीं हो रही हैं, जो चीज़ आप प्लानिंग के साथ एक मीटिंग में ख़त्म कर सकते थे, विदाउट प्लानिंग वो डबल ट्रिपल टाइम ले जाएगी. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंस, यू एंड अप स्पेंडिंग एक्स्ट्रा टाइम, यू एंड अप स्पेंडिंग मोर टाइम कि मैं इस काम को रैप अप करूं.
आपका भी ज्यादा लगता है, बाकी पार्टिसिपेंट्स का भी ज्यादा लगता है. That is why it is important for all of us to understand कि how are we using our time. अगर हम एक काम एक गो में ठीक कर लेते हैं तो उससे वक्त बच जाएगा. I can use it elsewhere. और इसकी दूसरी एस्पेक्ट जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो ये कि ये एक पूरा प्रोसेस है. यानी प्लानिंग की आपने कि अच्छा मेरी मीटिंग ऐसे होगी, उसमें ये वाला काम डन हो जाएगा, आज क्लोज हो जाएगा. उसके बाद आपने उसकी एग्जीक्यूशन की, आपने सोचा अच्छा अब ये मैंने मीटिंग रन की है, और लेटर ऑन यू रिफ्लेक्ट ऑन इट इन द पोस्ट मीटिंग टास्क. आपने सोचा कि अच्छा ये वाली बात आज ऐसे हो गई थी, इस चीज़ पे टाइम ज़्यादा लग गया था, इसको मुझे और समझाना चाहिए था, मैं नहीं समझा पाई ठीक से. तो ये जो रिफ्लेक्शन होती है, आपका अपना रिव्यू होता है, उसके बाद आप अपना ही प्रोसेस थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं. बिकॉज मीटिंग्स तो होती रहती हैं, इट्स नॉट अ वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग. तो जब आप अपने आप को बार बार रिव्यू करके बेहतर करते हैं एक एस्पेक्ट के अंदर, तो यू इम्प्रूव एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो. आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, आपकी प्लानिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन, हर चीज जो है ना वो टुगेदर थोड़ी 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 इम्प्रूव हो जाएगी. इट विल मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इफ यू कंटिन्यू टू डू दैट, लेट्स से फॉर 1 year. तो हमारी वर्किंग लाइफ तो काफी ज्यादा होती है, उसके अंदर अगर हम छोटी छोटी चीजों को इस तरह से ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, दैट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस. So do people generally agree कि yes it is a good idea to review कि हम मीटिंग्स में क्या कर रहे हैं, why are we operating the way we are operating, should we improve? Do people think it's a good idea? Yes, absolutely. Yeah. जी आयशा, ये बिल्कुल And Hanan has also raised their hands. Please go ahead. बिल्कुल जी श्योर. तो आज का सेशन तो हमारा इट्स अ स्किल एक्सचेंज सेशन, जिसके अंदर पीपल आर कमिंग इन एंड दे आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन स्किल दैट दे हैव, दे आर शेयरिंग इट विद द कम्युनिटी. तो आई होप यू लाइक टुडेज सेशन. जी, so if someone else has any comments or questions about today's session, please do let me know. जी आयशा. जी प्लीज गो अहेड डॉक्टर आफा. अच्छा, एक्चुअली ऐसा है ना कि हम लोग क्योंकि आई डोंट अटेंड मोस्टली इन पर्सन मीटिंग्स, तो ज़्यादा ऑनलाइन होता है मेरा. तो मुझे जो ऑनलाइन मीटिंग्स वाले मसले हैं ना, मुझे मेरे दिमाग में सारे वो आ रहे हैं, क्योंकि आई हैव नेवर वर्कड इन अ कंपनी और कॉर्पोरेट सेक्शन, तो मैं उससे रिलेट नहीं कर पा रही. मुझे वो दूसरे वाले मसाइल याद आ रहे हैं जो हमारे साथ होते हैं, जो ऑनलाइन मीटिंग्स होती है ना. अच्छा, उसमें क्योंकि उसमें मुझे जी मतलब उसमें मुझे लगता है लोग ज्यादा लिबर्टी ले लेते हैं. जो इन पर्सन होती है ना, वो लोग सामने होते हैं, फिर भी आपको कोई शर्म होती है किसी की, कोई देख रहा है, कोई कमेंट करेगा. लेकिन जो होती हैं ऑनलाइन, उनमें तो लोग बिल्कुल इफ यू दे वांट टू इग्नोर यू, या वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बिल्कुल. आपको क्वेश्चन किसी से डायरेक्टली भी पूछा है और दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, अनम्यूट नहीं कर रहे हैं. इस तरह के इश्यूज बहुत आ जाते हैं. देखिए, ये काफी इरिटेटिंग होता है. जी, they are genuine issues. तो the way I would address with those issues is कि you know, अगर तो मेरे पास यानी मेरी मीटिंग के अंदर लेट्स से मेरी टीम पार्टिसिपेट कर रही है and they report to me, तो after the meeting I will connect with them one on one to ask कि you know, I was expecting a response from you but I did not get it. खैरियत, why were you not able to speak, share, type, whatever. और अगर मैं उन्हीं लोगों के साथ काम करती हूँ तो वो एक दफ़ा ऐसा कर लेंगे, 2 दफ़ा कर लेंगे, बहुत ज़्यादा दफ़ा नॉर्मली लोग नहीं करते. अच्छा, however if it's a group जो कि आपको रिपोर्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि you then need to escalate it to the person जिसको वो रिपोर्ट करते हैं कि अच्छा you know, based on your instruction I called up a meeting with this group जिसमें ये 10 लोग थे and about this person I just want to share that I'm not getting any participation from their side. तो बात वही है कि अगर एक मसला है, you need to discuss it with the right and the relevant person to solve it. तो वो right and relevant person पहले तो वही हैं जो कि मसले की सोर्स हैं. अगर वहाँ से आपको रिस्पॉन्स फिर भी नहीं आता है, तो फिर आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाते हैं. Does that give you any idea? जी
ओके ओके जी जी एक्चुअली मैं इसमें आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक आई हैव गॉट 100 पार्टिसिपेंट्स इन अ पेरेंट्स ग्रुप एंड कोई हॉट इशू चल रहा है एंड एवरीबॉडी वांट्स टू पार्टिसिपेट कि ये डिस्कस होना चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड देन वी डिसाइड अबाउट ऑनलाइन मीटिंग। और इतने एंथुसियाज्म के बाद ओनली 1 or 2 पीपल शो अप एंड इवन दे डोंट पार्टिसिपेट। तो आप बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपको होती है, मतलब दे आर नॉट आंसरेबल टू मी कि मैं उनसे जवाब तलब कर सकूं बाद में। इस तरह की सिचुएशंस क्यों होती हैं कि पहले लोग बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं कि हाँ जी हम इस मसले का हल ढूंढना है, फलां टाइम पे हम इकट्ठे होंगे, विल हैव अ मीटिंग, विल कम अप विद अ सॉल्यूशन, एंड at that time nobody shows up. That's a very very common thing। और खास तौर पे I've seen कि अगर कोई volunteer initiatives है ना जहाँ पे there are no strings attached really, तो वहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा होता है कि people commit and they don't show up। तो बात जी तो बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं समझते हैं जी। तो बात तो वही है कि अगर आपके पास एक ही ग्रुप है और इस पे यही लोग हैं, तो you go and report out to the group कि as per our promise and commitment we organize this session for them। और जो भी उसकी आउटकम होती है कि अच्छा only 2 people showed up and here are their suggestions and here is जो आपने केस क्लोज करना है वो आप उसी ग्रुप में कर दें। नेक्स्ट टाइम इफ समवन सेज तो एटलीस्ट यू सी वो 1 2 3 चीजें आप ओवर टाइम रिपोर्ट बैक करते हैं उसी ग्रुप को कि देखिए मैंने आपके लिए इस दफा भी टाइम रखा था, इस दफा भी रखा था, तीसरी दफा भी रखा था। उसके बाद यू कैन एक्चुअली सी के इज व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दैट ग्रुप। अगर उनकी कमिटमेंट नहीं है तो व्हाई आर यू इवन ऑर्गेनाइजिंग दैट ग्रुप। तो दैट्स वन वे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो जब वन वे हो जाता है उनका जो इंटरेस्ट होता है वो जस्ट वो समंदर की झाग की तरह बैठ जाता है, और उसके बाद कोई अगर आपको पार्टिसिपेशन नहीं मिलती है तो फिर आप भी बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि उसको आपको पहले जज करना चाहिए कि आर पीपल रियली इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग या वो बस वक्ती जोश जज्बे में बोल रहे हैं कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। एंड आई एम श्योर कि उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप पर्सनली जानती होंगी, तो एटलीस्ट आप उनकी कमिटमेंट ले सकती हैं सो दैट इट्स नॉट अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ योर ओन टाइम आल्सो। जी जी, थैंक यू फॉर योर सजेशंस। मोस्ट वेलकम जी। Ma'am, if you give me 1 minute, can I demonstrate how to review to our website? जी sure go ahead। Thank you so much. So I'm going to share my screen now, and please, I have shared a link in the public chat as well as in the WhatsApp group. When you will click on it, you will go directly to our company's profile on trustpilot.com. But if you just go to the website trustpilot.com, you will need to write down in the search bar tutorbees.net and click on search. And this is our profile, tutorbees.net on Trustpilot. And we request all of you after this session to give a review. Now, how to give a review? So this is the link to give a review. When I will click on write a review, and then I will rate my experience on TutorBees. And when I will click on the stars, and here I will type something about my experience. For example, it was a good class, for example. And then and if I come down, you can give your the title to your review and the date of experience, and this is the button to submit the review, right? So it's pretty easy. We would like to request all of you after this session to give review. I have shared this in the WhatsApp group as well, and in the public chat of this session. So thank you so much, ma'am. Thank you very much, Bilal. I think Asya, you had questions. Please go ahead. आपके comments हैं या question है? बस आयशा मैं यही इसी में ऐड करना चाह रही थी। उस वक्त आप एक पॉइंट कह रही थी, अभी डॉक्टर अरफा ने भी बात की कि ये जो मीटिंग कंडक्ट कर रहा होता है उसके हाथ में ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो कैसे ड्राइव करता है, और उस
में ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है कि अगर वो ये अपने पार्टिसिपेंट को वैल्यूड फील करा दे और तो पार्टिसिपेंट उनके साथ अच्छे से कनेक्ट होंगे। तो ये भी बहुत डिपेंड करता है कि जो मीटिंग ले रहा है और जिसने हमें पॉइंट्स भेजने हैं उसके ऊपर बहुत ये बात डिपेंड करती है। अब वो वैल्यूड फील कराने के लिए उसने अपना फोकस भी रखना है और उसने लोगों को वैल्यूड फील भी कराना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कमेंट लेना इम्पोर्टेंट होता है या जिनका ऐड कर रहा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उन्होंने सुनना होता है या वो उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, मगर वो प्राइमरी या सेकेंडरी ऑडियंस जो भी हैं उन सब का कोई एक वे होना चाहिए कि उनको लगे कि वो पार्ट ऑफ मीटिंग है। आपने इसका जिक्र किया है पहले वाले शुरू के स्लाइड्स में, लेकिन इसमें अगर आपके पास कोई आइडिया है कि इसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मीटिंग्स कंडक्ट की जाती हैं उनमें ये चीज होती है कि बहुत यानी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने देखा है कि सबको इकट्ठा, जहां 60-70 लोग हैं उनको इकट्ठा करके जस्ट इंफॉर्मेशन पास ऑन करना जो है वो आप पेपर के थ्रू भी कर सकते हैं, वो आप एक रिटन चीज भेज के भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसा तरीका है कि इतने 60-70 लोग हैं, आप उनके साथ मीटिंग की जो एक ऑब्जेक्टिविटी है उसको ऐसे सेट करें कि वो भी आपसे कनेक्टेड फील हो। अच्छा, सो आई थिंक दिस इज, हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है और आपने उसको यानी you've actually given an example, because छोटी मीटिंग जो होती है ना, let's say 6 to 8 participants अगर हैं, उसमें लोगों को engage करने का तरीका मुख्तलिफ है, और अगर आपके पास लार्जर ग्रुप है 60 to 70 लोग हैं तो उसमें engage करने का तरीका मुख्तलिफ है। बिकॉज आमतौर पे छोटी मीटिंग्स होती हैं ना, दे आर लाइक फोकस ग्रुप्स, जिसमें आपने कोई फैसले करने होते हैं, कोई आपने इंपॉर्टेंट चीज़ रिव्यू करनी होती है, आमतौर पे ऐसे होता है। जबकि बड़े ग्रुप जो होते हैं उसमें ज़्यादातर आप इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं और लोगों से उसका रिएक्शन जो भी जा रहा है वो आप रिएक्शन ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एंड एट द सेम टाइम इंफॉर्मेशन देते हुए अगर किसी का कोई सवाल है और आपकी इंफॉर्मेशन उसको एड्रेस नहीं कर रही है तो आप वो सवाल दे रहे हैं, देन एड्रेस करते हैं। तो नॉर्मली आई ट्राई टू engage larger audiences by asking them questions. बड़े सिंपल इनोसेंट सवाल भी हो सकते हैं कि जी अच्छा आपको ये वाली चीज़ समझ में आई है कि इसका मतलब ये हो सकता है, इसके पॉसिबल मीनिंग्स क्या हैं। तो जाहिर है अगर कोई पॉलिसी आप बता रहे हैं लोगों को, कोई और प्रोसेस समझा रहे हैं या आप कंपनी के प्लान्स शेयर कर रहे हैं, तो या तो आप फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं या आप पास्ट का डेटा दिखा के रिव्यू कर रहे होते हैं, राइट। तो उन दोनों केसेस के अंदर आप कोई एक चीज़ पकड़ते हैं, आप उनसे कहते हैं कि जी अच्छा इस वाली चीज़ का मतलब लोगों को क्या समझ में आया, ये वाला मतलब है या ये वाला मतलब है। तो देन दैट इज समथिंग जो कि लोगों को आंसर करना इजी लगता है कि हाँ ये वाला मतलब हो सकता है। तो आस्किंग क्वेश्चंस इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे टू इंगेज द ऑडियंस। अब वो सवाल कैसे पूछने, ये वाला सवाल पूछना कि अच्छा आपको समझ आ गई है, आई फाइंड कि ये इतना वैल्यू एडिड सवाल नहीं है। तो वैल्यू एडिड सवाल यही होगा कि अच्छा मैंने ये पॉलिसी बताई है, इसकी इंटरप्रिटेशन आप ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे, और मैं पॉलिसी ये तो बना सकती थी, मैंने साथ में ना ये दो चीज़ें भी कंसिडर की थी, तो डू यू थिंक ये राइट फैसला है कि हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो देर आर मेनी वेज टू कम अप विद गुड क्वेश्चंस जिससे ऑडियंस एक्चुअली इंक्लूडेड फील करती है कि अच्छा हमारा ओपिनियन इसमें काउंट कर रहा है, इन्होंने हमसे मतलब पूछा है, इन्होंने हमसे ऑप्शंस जो हैं वो बताई हैं, इन्होंने क्या कंसिडर की थी, और दे आर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस। तो आस्किंग क्वेश्चंस इज अ ग्रेट टूल। बिल्कुल ठीक है जी। आयशा, अगर आपकी जो डिसीजन मेकिंग मीटिंग्स होंगी उसमें तो आप 1-on-1 एक छोटी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे होंगे ना, वो तो आपके 8-10 लोग होंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं जिसमें आपको बड़े डिसीजंस लेने हैं, वो उसमें तो आप 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि डिसीजन मेकिंग मीटिंग्स में तो थोड़े लोग होते होंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है, और डिसीजंस को भी आप अगर थोड़ा सा एनालाइज करें, डिसीजन मेकिंग के बड़े सारे डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल है कि आपने कोई एक फैसला करना है, तो आप कहते हैं अच्छा इस फैसले की फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। लेट्स से किसी दफ्तर के अंदर जो है वो आप कहते हैं कि जी हमारे पास जो है ये एक सर्टेन ब्रांड का पानी आ रहा है,
अच्छा जी, फैसला ये करना है कि जी आप ये ब्रांड जो है चेंज कर दें क्योंकि कंप्लेंट्स आ रही हैं। अच्छा, मैं ये वाला ब्रांड करती हूँ तो इतने का पड़ता है, मैं वो ब्रांड करती हूँ तो उतने का पड़ता है। एंड सेम गोज फॉर एनी अदर फैसिलिटी। तो आप कुछ फैसले होते हैं जिसके ऊपर आप कहते हैं कि अच्छा फाइनेंशियल्स के ऊपर इम्पैक्ट जो है दैट इज गोइंग टू हेल्प अस डिसाइड के हमने जो है इस फैसले को कैसे करना है। इन सर्टन केसेस आप कहते हैं कि अच्छा इस फैसले का इम्पैक्ट जो है वो मेरे एम्प्लॉयज के ऊपर क्या है, क्या लोग एक्चुअली खुश हो जाएंगे मेरा ये फैसला करने से। तो वहां पे आपकी जो डिसीजन मेकिंग की बेसिस है वो शायद पैसे नहीं होंगे, वो लोगों की एक सेटिस्फैक्शन लेवल होएगी। तो अब कौन से फैसले कैसे करने हैं वो आप थोड़ा सा ना बेसिस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाज़ लोग अस्यूम कर रहे होते हैं कि अच्छा इस चीज के अंदर तो द ऑर्गेनाइजेशन विल चूज द चीपेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। हो सकता है कि वो अच्छी बेसिस ना हो, आप उसको डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हैं कि जी यू शुड नॉट कंसिडर दैट एज द बेसिस फॉर डिसीजन। हम बहुत सारी बिजनेस मीटिंग हम कर रहे होते हैं जहाँ पे ना बाय शो ऑफ हैंड्स, बाय ऑनलाइन वोटिंग के जरिए से भी हम डिसीजन लेते हैं। यस, और बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जहाँ पर टेक्निकल पैरामीटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। वहाँ पे हम वेटेज देते हैं कि 70% टेक्निकल मैटर्स हैं और 30% फाइनेंशियल एवेल्यूएशन है जी। तो वो दोनों को इन्वॉल्व करके हम किसी फाइनल डिसीजन पे थ्रू वोटिंग पहुंच जाते हैं और या फिर हम एक कंपैरेटिव बनाकर पहुंच जाते हैं। जी जी, ये बिल्कुल वैलिड है कि बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर फैसला टेक्निकल प्लस फाइनेंशियल दोनों बेसिस पर हो रहा होता है। और खास तौर पे व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, तो जिन लोगों ने काम किया होगा उन्हें पता होगा कि उनकी टेक्निकल फीजिबिलिटी सेपरेट होती है, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी सेपरेट निकलती है। वो करते ही सेपरेट है। वो इसको 2 स्टेज प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज के ऊपर यू सी वेदर समथिंग इज टेक्निकली पॉसिबल एंड देन यू फिगर आउट कि अच्छा फाइनेंशियली क्या फीजिबिलिटी निकल रही है। तो एब्सोल्युटली जी, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वहां पे अगर आपके अगेन डिसीजन के पैरामीटर्स आप लिख लेते हैं ना कि जी इस बेसिस पे हम फैसला कर रहे होंगे, तो बाज़-औक़ात उससे भी बड़ी क्लैरिटी आ जाती है, मीटिंग में फोकस आ जाता है। और एक सेपरेट मीटिंग सिर्फ इसके ऊपर भी हो सकती है कि जी हमने फिलहाल मैटर डिसाइड करना है, बट बिफोर द डिसीजन वी वांट टू सी कि जी हमारी डिसीजन प्रोसेस क्या होगा, किस बेसिस के ऊपर हम फैसला कर रहे होंगे। एनी अदर क्वेश्चंस, कमेंट्स बिफोर वी एंड टुडेज सेशन? बहुत दफा ऐसा होता है कि हम मीटिंग कंडक्ट कर रहे होते हैं तो मटेरियल तैयार नहीं होता। सेक्रेटरी की बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एजेंडा पॉइंट्स चेयर से प्रॉपर डिस्कस करे, उसका फिर टाइम एलोकेशन दे कि इस मीटिंग का 3 आवर्स की मीटिंग होगी और फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को 20-30 मिनट्स मिलेंगे और वो जो मेंबर्स हैं उनको डायरेक्टली इन्वॉल्व भी करे कि जो एजेंडा है उसके बारे में प्रॉपरली उनको इन्फॉर्म किया, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई है और वो ड्यूरिंग इंटरेक्टिव सेशन उनके साथ लाइजन में भी रहे और एट द एंड कोई हर पॉइंट का या उस पॉइंट को अर्जन करना है या अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे या इसको पोस्टपोन करना है या फिर किसी नेक्स्ट मीटिंग में लेके जाएंगे ताकि हर एजेंडा पॉइंट प्रॉपरली वहाँ पे डिस्कस हो और उसका रिजल्ट भी आ जाए कि ना ये यस है, नो है, ये पास है या फेल है, ताकि उसके मुताबिक आगे चलते जाए। अगर हम मीटिंग में सिर्फ पॉइंट डिस्कस करेंगे और किसी कंक्लूजन में नहीं पहुँचेंगे तो वो मीटिंग फेल हो जाएगी। सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़रूरी है सेक्रेटरी को कि वो हर पॉइंट के ऊपर यस या नो का वोट ले मेंबर्स के साथ। अगर लोग पढ़ कर नहीं आएंगे, जब वो यस और नो का वोट दे रहे होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि जनाब ये पोजीशन क्या है और लोगों की तैयारी कितनी है। और जी, सब उसे जी बिल्कुल है। और एक चीज मैं ऐड करूंगी आपकी बात के अंदर कि यस और नो वाला जो वोटिंग मैकेनिज्म है ना, दिस इज वन वे टू डिसाइड बट दिस इज नॉट द ओनली वे टू डिसाइड। बाज़-औक़ात जब आपने अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से फैसला करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक टेक्निकल डिसीजन है तो एक्चुअली जो बंदा उस टेक्निकल डिसीजन की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, आप उसको कहते हैं कि जी फैसला आपने करना है। यू हियर एवरीबडीज ओपिनियन एंड यू लुक एट द कंपैरिजन, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर अकाउंटेबल फॉर द डिसीजन दैट गेट्स डन टुडे। तो टेक ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर, टेक ऑल द इनपुट्स, you decide and you are accountable then। तो ये दोनों बातों में ना ये बड़ा फर्क है कि आपने मीटिंग कैसे एग्जीक्यूट की है। That's why I suggested in the slide कि आप डिसीजन मेकर को क्लियरली अपने माइंड में भी सोचें, उसको कम्युनिकेट भी करें पहले कि जी ये फैसला फलां ने करना है या हम सब ने मिलके करना है, हम मेजॉरिटी वोट पे कर रहे हैं।
ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। बर्डन चला जाएगा। अगर ईच मेंबर हैज इक्वल वोट है उसका, तो फिर फैसला करना आसान हो जाएगा। और किसी का डिसेंट नोट है उस फैसले वाले से, तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे हमारे जजेस जजमेंट देते हैं, जब 3 या 4 जजेस होते हैं, तो वो लोग डिसेंट नोट भी दे रहे होते हैं और फैसला यूनानिमसली किया जाता है। उसमें फिर इक्वली हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी शेयर्ड हो जाती है। अगर जी, वो हम डिपेंड करता है। अगेन एज आई सेड बिल्कुल। कि ये मॉडल्स हमेशा डिपेंड करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मीटिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो सारी चीज़ों के ऊपर ये चीज़ मैटर करती है। और सिमिलरली अगेन फ्रॉम एन अकाउंटेबिलिटी पर्सपेक्टिव, नॉर्मली आपके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, दे आर अकाउंटेबल फॉर सर्टेन फंक्शंस। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, इवेंचुअली उसकी जिम्मेदारी किसी एक शख्स के ऊपर आ रही होगी। बिल्कुल सही जवाब है। आयशा, जी छोटी सी बात है। मोहम्मद साहब, बीच में आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। ऐड करना चाहती हूँ। जो मोहम्मद साहब बात कर रहे हैं, अभी आवाज आ रही है जी, आयशा? आइए। जी जी एम आई क्लियर? Loud तो and मैं clear, यही loud बात करी थी कि जो अभी मोहम्मद साहब बात कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा ख्याल है ये फॉर्मेट ऑफ मीटिंग के ऊपर बात करें कि एजेंडा पॉइंट्स हैं, अगर आप उसको लेकर आए हैं, उसके बाद उसका जो डिसीजन मेकिंग, उसके बेस पर आपने डिसाइड करना है, और डिसाइड करके उसका फॉलो अप, फिर जाहिर है उन पॉइंट्स का फॉलो अप। तो इसके ये एक काइंड ऑफ फॉर्मेट है, इसके ऊपर मीटिंग होती है कि जब हमने कोई हम डिसीजंस देकर गए हैं। मोहम्मद साहब, एम आई राइट? जी, हमारा सब्जेक्ट भी मीटिंग है यही ना, हाउ टू रन अ सक्सेसफुल मीटिंग। तो मीटिंग हाँ, आप इसका फॉर्मेट डिस्कस करें। जी ठीक है, ठीक है। यस आपने सही कहा। जी, थैंक यू। आयशा, जी जी ओवर टू यू। ओके, सो आई थिंक यस वी ऑल एग्री, जो उन्होंने बात की थी कि आप पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं और उसको क्लोज करके फिर आगे मूव ऑन करें। और थोड़ी सी हम साइड ट्रैक हो गए थे डिसीजन मेकिंग वाली चीज़ के ऊपर कि अच्छा वो कितने मुख्तलिफ तरीकों से डिसीजन मेकिंग हो सकती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी राइट। बहुत वैल्यूएबल ऐड किया है मोहम्मद साहब ने, इनका जो इनपुट है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, इट वाज अ ग्रेट सेशन। मुझे भी आप लोगों से बहुत सारी जो है वो चीज़ें सीखने का, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को सुनने का मौका मिला। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और with that, I think we can just end the meeting. It's about time. Yes, Thank you ma'am. very Thank much. you so much. Thank you, ji. Allah Hafiz. थैंक यू वेरी मच। Yes. अल्लाह हाफिज। ठीक हाफिज।